जी जी। اور खबर یہ ملی تھی کہ رفایت بھائی بھی یہیں کے رہتے ہیں آس پاس میں، احمد آباد میں ہی ہوں۔ ہیں۔ فضائل اعمال ہے نا، جی جس کو زکریا کاندھلوی نے لکھا، جو نئی قوم پیدا کیا، وہ بے شک دیوبندیوں سے، وہ دیوبندی سے ہی منسلک ہے۔ جی اور فضائل اعمال لکھنے کا ان کا جماعت بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کو عام کرنا اسے۔ جی جی اور جی وہ انہوں نے بیان خود کیا ہے کہ طریقے تبلیغ میرا ہو، اور علم جو لکھے ہیں پرچار کرنا، علم کا پرچار کرنا اشرف علی تھانوی کا ہو۔ یہ فضائل فض- اعمال میں لکھا ہے۔ یہ فضائل اعمال میں نہیں، دوسری کتاب میں انہوں نے بیان کیا ہے، جی دوسری کتابوں میں بیان کیا ہے اس کے تبلیغ، اور تبلیغ کا طریقہ اس میں جو بیان کیا ہے انہوں نے وہ لکھا ہے، اس میں ایک کتاب ہے، جی یہ کاندھلوی صاحب جو بیان الیاس کیے ہیں، لکھا کتاب میں ملفوظات حضرت مولانا الیاس، صفحہ نمبر 51 اور 52 میں لکھا ہے یہ جی کہ ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ، لکھا ہے، نے بہت بڑا کام کیا ہے، یہ بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم اس کی ہو اور طریقے تبلیغ میرا ہو، کہ اس جی طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے۔ اچھا اچھا ہے، اور مناسب کتنا ہے۔ اور یہی لکھا ہے مولانا الیاس، اور ان کی دینی دعوت صفحہ نمبر 165 میں لکھا ہے، ایک مرتبہ عزیز مولانا ظہیر الحسن صاحب MA علیہ سے فرمایا، جو ایک وسیع النظر عالم ہے، ظہیر الحسن، میرا مدعا کوئی پاتا نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلات ہے، یعنی روزہ نماز کا ہے، میں قسم سے کہتا ہوں، قسم کھا رہا ہے وہ، اچھا قسم سے اچھا کہتا ہوں، ہرگز تحریک صلات نہیں، یہ تحریک روزہ نماز کی نہیں ہے۔ ہوں بڑی حسرت سے فرمایا، میاں ظہیر الحسن، ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ ہاں جی، اب بات سامنے آیا جی۔ مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت صفحہ نمبر 165 میں الیاس نے خود تحریر کیا ہے۔ تو جی اب چلیں ان کے فضائل اعمال کی طرف تو متوجہ ہوں۔ جی یہی کہہ رہا تھا جی۔ تو کہتا ہے فضائل اعمال میں، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 254، فضائل صدقات ہے، زکریا دیوبندی خود لکھا ہے اس میں، جی اگر حق تعالی شانہ یہ جانتے کہ اغنیا کی زکوٰۃ فقراء کے لیے کافی نہ ہوگی تو زکوٰۃ کے علاوہ اور چیز ان پر فرض کر دیتے۔ جی بس اگر اب فقراء بھوکے ہوتے ہیں تو اغنیا کے ظلم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو بتائیے اس میں کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، معاذ ورنہ اللہ، زکوٰۃ بڑھا دیتا وہ۔ یہ تو فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ فضائل اعمال جلد نمبر اول صفحہ نمبر 254 میں۔ ہوں اب دیکھیے اللہ کے علم کا انکار انہوں نے کیا۔ ابھی اب تو حضور کا ہی انکار ہو رہا تھا، یہاں تک ٹھیک پہنچ گئے کہ اللہ تک بھی پہنچ گئی ہے حرام خور۔ جی 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 جی۔ جی اور فضائل اعمال میں فضائل نماز ہے، صفحہ نمبر 287 میں لکھا ہے، تبلیغی جماعت کے شیخ الحدیث کہلاتے ہیں یہ مولانا زکریا کاندھلوی دیوبندی نے فضائل اعمال میں فضائل نماز کے آخر صفحہ پر یہ بے توجہی کی حالت میں قرآن کو ہذیان اور بکواس سے تشبیہ دیتے ہوئے لکھتا ہے، نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، قرات قرآن ہے، یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں، ایسی ہی ہیں جیسے بخار کی حالت میں ہذیان اور بکواس ہوتی ہیں۔ تو کس کو ہذیان اور بکواس کس کو کہہ رہا ہے؟ قرآن قرآن مقدس کو، تلاوت کو۔ قرآن مقدس کی تلاوت کو کہہ رہا ہے۔ اور انسان کی یہ ہوتی ہیں، ہر انسان یہ یکسوئی سے نماز ادا نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ذہن ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، جی سمجھے؟ تو اس طرح کہہ رہا وہ ہذیان ہوا، یعنی قرآن کی تلاوت کو
हिज़यान और बकवास से इन्होंने ताबीर की है, कुरान की गुस्ताखी किया। पहले नंबर तो अल्लाह की गुस्ताखी देखे, अब कुरान की गुस्ताखी उसमें पा ली है। अब अंबिया की गुस्ताखी देखिए, फजाइल सदकात ही में हिस्सा दोम सफ़ा नंबर 572 में एक बुजुर्ग की एक राहिब से मुलाकात हुई। गुफ्तगू के दौरान राहिब ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि वो 40 दिन तक फाका कर लेते थे, तो उनके बुजुर्ग ने 60 दिन तक फाका करके दिखा दिया और राहिब मुसलमान हो गया। साबित हुआ कि तबलीगी जमात के अकाबिर इतने पुख्ता ईमान वाले होते हैं कि अंबियाई किराम अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला करके अमल में बढ़ने की कोशिश करके गुस्ताखी कर बैठे। समझे? वो नबी मसीह अलैहिस्सलाम तो इतना ही करता था, मैं उससे ज्यादा फाका कर सकता हूँ। यानी ईसा अलैहिस्सलाम 40 दिन भूखे प्यासे रहते थे और देवबंदी हजरात का क्या कहा, दावा किया कि 60 दिन भूखा प्यासा रह गया। हालांकि झूठ गढ़ा है, इन लोग पेट भरवा रात दिन ठूसते रहता है। समझे? जी जी, ऐसा ऐसा लिखा है गुस्ताखी में। भारत उन लोगों ने लिखा था कि बाज़ औकात उम्मती जो है वो कमल लिखा की है, वो तहजीर है। उन्नास में लिखा है। हाँ, तो ये सामने ये हरामखोर पेड़ भी करके दिखाते हैं हाँ, ऐसा। दिखा दिया, अमलन भी दिखाने की कोशिश किया है। और जी फजाइले दरूद, फजाइले दो हिस्सा दोम है, वाक़िया नंबर 9 सफ़ा नंबर 97 में फजाइले दरूद लिखा है। फजाइल उसमें तो शेख अली मुत्तकी फरमाते हैं, लिखता है, एक फ़कीर ने फ़ुक़राए मग़रिब से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो उसको शराब पीने के लिए फरमाते हैं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बताइए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब में देखता है ना, तो वो झूठी ख्वाब नहीं होती, वो हकीकतन वो हुजूर ही हकीकतन ही हुजूर होते हमारा हैं। अकीदा है। जी जी तमाम मुसलमानों का अकीदा है, एक दो हदीस नहीं है बल्कि इसमें कई हदीसें हैं। समझे? तो जी ये पुख्ता हदीस यानी ईमान है, मुसलमानों की ईमान है। अब ये देवबंदी क्या कह रहा है कि एक फ़कीर यानी देवबंदी एक ख्वाब में देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और उसको शराब पीने के लिए हुक्म दे रहे हैं, शराब पियो। कुरान के खिलाफ हुक्म देंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बिल्कुल नहीं है सर। तो बताइए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें गुस्ताखी उन लोगों को नज़र नहीं आती। फ़ज़ाइले आमाल को कुरान के दर्जा बल्कि उससे भी बढ़ कर के, यानी कुरान की तफ़सीर नहीं पढ़ेगा, फ़ज़ाइले आमाल को नगर-नगर सीना में पीठ में लाद करके फिरते रहता है ये लोग। जी। हाँ, तो जैसे कल मैं इसकी मुफ्ती के पास जाऊंगा मैं। जी, जी। जी, उसने कहा कि जैसे मुझे नहीं मालूम है। हुँ, हाँ, तो मैंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे मुफ्ती साहब से भी मिलेंगे। अब हुँ। वो किताबों से बात करें, मैं ज़बानी बात करूंगा। जी, जी। मैंने यहाँ तक कह दिया क्योंकि हज़रत मैं आलिम नहीं हूँ, मैं अभी 18-19 साल का ही लड़का हूँ। हुँ, अब मैं अरबी आज तक मैं मदरसे में कोई मेरी फरागत हासिल नहीं है। हुँ। जी जी, आप बात जी, करवाइए मेरी कोई इनके फरागत फ़ज़ाइल। हासिल जी, एक मिनट हज़रत। तो जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोशिश करता हूँ कि मैं इनको जो है बिना किताबों के मैं नंगा कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हज़रत मैं आप लोगों के जो है ऑडियो सुन-सुन कर हकीकतन मैं मज़ाक से हट के बता रहा हूँ। जी, जी, जी। जी, इतना मुझे कॉन्फिडेंस हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जी, बस यही दुआ कि इंशाअल्लाह मैं जो है इतना बनना कि हाँ, मुनाज़रे में इंशाअल्लाह हुँ। हाँ, मैं शिकस्त दे सकूँ। देखिए, इनके फ़ज़ाइल अमाल को जो रात-दिन गुण गाता है, इसमें अल्लाह की गुस्ताखी, अंबिया की गुस्ताखी, सहाबा की गुस्ताखी, हज़रत इमाम हसन हुसैन की गुस्ताखी, बल्कि नमाज़ को भी मज़ाक बना लिया है इन लोग। जी, जी। फ़ज़ाइल अमाल तो में जैसे देखिए। हज़रत क्या है ना, जी, कि जैसे जितना गुस्ताखाना इबारत है फ़ज़ाइल अमाल में जो लिखा हुआ है फ़िलहाल, जी, जी। तो उस सब का जो है स्कैन पेज मुझे भी भेज दीजिए। जी, 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 क्योंकि जी, जी, जी। तो जब तक मैं उनको मतलब दिखा सकता हूँ कि ठीक है। हाँ। तो मैं ये बात कर रहा था ना हज़रत कि ठीक है, अभी आप मुफ्ती साहब तो आपके यहाँ भी नहीं है, ना हज़रत? जी। तो हाँ, तो मैंने ये कहा कि ठीक है, जब तक आप फ़ज़ाइल अमाल भी लिखा हुआ है, तो मैं इनसे भी इबारत दिखाऊँगा और जब तक आप कुरान करीम उठाइए। हुँ, मैं कुरान करीम का वो मैं इबारत उठाऊँगा, जो उन्होंने गलत-गलत तर्जुमा किया है, जैसा हुआ है ववजदका ضالًا फहदा। हुँ, इन बदतमीज़ों ने हाँ, कुरान को तर्जुमा किया कि हमने नबी को गुमराही में पाया माज़अल्लाह। हुँ, बल्कि और भी इबारत है कि मा कुन्ता तदरील में किताब वल ईमान, ऐसी कुछ आयत है। हुँ, जी, कि ए नबी, जब तुम इतने साल के थे तो तुम ईमान जानते ही नहीं थे, माज़अल्लाह रब्बिल हुँ। आलमीन।
सही बात है, उन्होंने तर्जमा किया, जी तर्जमा जी बहुत भी गड़बड़ी किया है उन लोग, जी जैसे जी जी अल्लाह को मकर करने वाला भी माना है और हाँ धोखेबाज हाँ भी माना है, अब हाँ बहुत सारी आयतें हैं उसमें। कि अल्लाह बेहतरीन मकर फरमाने वाला है, हम्म ये लिखा हुआ है। हाँ और जी 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 माशाल्लाह। मकर से मकर करना ये ऐब है, और अल्लाह तबारक व तआला ऐब से पाक है, लेकिन इन बेशक लोग पाक है। बेहुदा गोई और अपने अकायदे बातिला को जाहिर करने के लिए और अवाम को गुमराह करने के लिए ऐसी किताबों में तर्जमा दे करके कर करके लोगों को जी हाथ में थमा मैं दिया है ताकि जी गुमराह हो। अब मैं इधर चारों तरफ मैं देखता हूँ सर, ये तबलीगी ही तबलीग दिख रहे हैं इधर से। कितना हम्म, अफसोस होता है सर कि हमारे यहाँ सुन्नी मतलब नहीं दिख रहे हैं इधर जहाँ मैं आया हूँ अभी। जी जी मतलब अफसोस होता है मुझे। अच्छा सर, जैसे ये क्या होता है कि जो अपने अकायद पे नहीं जानते हैं, धोखे में है, तो हजरत जैसे इन लोगों का हाल कब्र में क्या होगा? जैसे हम इन पर काफिर तो नहीं कर सकते, ये तो मुझे भी मालूम है। हम्म। तो जैसे हजरत क्या मतलब क्या मामला होगा इन लोगों का कब्र में? जो जिस कौम से मुशाबिहत करे वो उन्हीं कौम में से उनके हश्र होंगे, समझे। जी जी तो जिसको जो सच्चा समझता है उन्हीं लोगों के साथ उनके हश्र होगा और उनको साथ ही उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब जैसे हजरत क्या है कि जैसे उन लोगों को ये नहीं पता था अगर कि थानवी ने हुजूर हाँ कलमे गैब को ऐसा कुछ लिखा है, हम्म, उन्होंने उनको नहीं मालूम था तो मैंने बताया। हम्म, अगर मान लो से उनको ना मालूम होता, अब वो हम्म, धोखे में चले जाते, हम्म, उनको मालूम ही ना कि थानवी ने ऐसा ऐसा सब कुछ लिखा, वो तो समझो नमाज के बल पर, रोजे के बल पर, इस्लाह के बल पर वो चले गए उधर। हम्म। तो उन लोगों का हश्र कब्र में क्या होगा? उन एक हश्र में से उसको गुमराह कहेंगे, जी काफिर तो नहीं कह सकते हैं उनको, जी जी उनको गुमराह कहेंगे। जो जी उनके जोम ख्याली यानी उसकी अच्छाई जाहिरी को देख करके बस वो भटक गए हैं जी और उनकी हकीकत को नहीं जानते हैं, उनके अकायदे बातिला को नहीं जानते हैं। जी तो इस तरह से वो गुमराह कहलाएंगे और गुमराह लोगों की हश्र में अगर अल्लाह चाहे तो ज़रूर उनकी बख्शिश होगी। जी लेकिन वो यकीन रखता है अल्लाह तबारक व तआला पाक है, अपने जैसा मोमिनों का आम मुसलमानों का अकीदा रखता है वैसा अकीदा रखा है तो ज़रूर उसकी भी शफाअत होगी, लेकिन अज़ाब सज़ा वगैरह पा करके, समझे। जी 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 अब रही बात, लेकिन अगर वो बात आने के बावजूद बताने के बावजूद भी उसी में कायम रहा तो वो तो पक्का ये जी दायरे जी इस्लाम से खारिज करार बिल्कुल, ये दिया तो मन जाएगा। शक्का कुफरी व आज़ाबी फ़क़त का वाला फतवा हाँ समझ में फिट हो गया उस पे। जी जी जी। जी, और एक मसला मुझे जानना था कि अगर मान लीजिए कोई चिकवा हो जो हम्म गोश्त, हाँ, जो मतलब गोश्त ज़िबह करता हो मुर्गा का, हम्म हमारे इलाके में है जहाँ भी मैं रहता हूँ। हम्म जी, हमारा जहाँ वतन है, तो वो तो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है, लेकिन हम्म हज़रत वो शराबी है। हम्म तो क्या जो है उसका भी मतलब वो गोश्त में जैसे बिरयानी वगैरह, मुरादाबादी बिरयानी वगैरह है, सब कुछ गोश्त लेते हैं, मैं जानता हूँ। हम्म। मैं देखता भी हूँ। तो क्या हज़रत तो क्या उस जगह पे बिरयानी खा सकते हैं? क्योंकि वो सही बहरहाल उनके अमाल हैं वो, और उसके अमाल वो गुनाह करता है लेकिन सहीहुल अकीदा है, उसके जी, जी। ज़बिया हलाल है, हराम नहीं हाँ। है। जी, जी, उसके जी। गुनाह का हिसाब सज़ा व जज़ा वो भुगतेगा, दूसरे पर उसके आयद नहीं होते हैं, जी, जी। समझे। यानी बिला तहक़ीक़, हाँ, जी, 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 मतलब ये खा सकते हैं। खा सकते हैं ये तो बिला मुझे रोक मालूम टोक। है जी, वो सही, हाँ जी, वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा ये मुझे भी मालूम है। वो फ़ातिहा भी मुझसे कई बार करवाया है वो सब कुछ। हुँ, हुँ। जी। ठीक है, वल्लाहु आलम बिस्वाब। वल्लाहु आलम। हज़रत ये हाँ जी, फ़ज़ाइल अमाल का जो मैंने आप कहा नहीं है? जी, जी। जी, जी, तो मैं इसके मुफ्ती के पास में जाऊँगा इंशाअल्लाह, और रिफ़ात भाई से मेरी बात हुई है कि भी जी, मैं हल्द्वानी में हूँ। जी। मामलात यहाँ के ठीक नहीं है ना, तो वरना मैं खुद वही वहीं वहीं पे जी, आता। अगर बात कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, उनके फ़ज़ाइल अमाल की बहुत कसीर मैं हवाला दूँगा, जी, ताकि अगर अल्लाह चाहे तो हिदायत पे आ सकता है, वरना आमीन। उसके आप दुआ उसके ही हाल कर पे छोड़ सकते हैं दें। हज़रत। जी, जी, जी। जी, अब वैसे तो जहाँ तक मैंने बात किया था हुँ, यहाँ, तो जब मैंने उनसे कहा तो अब मुझे तो नहीं लगता कि वो राह-ए-रास्त पे आएगा, क्योंकि जब मैंने कहा था तो उसने ये कहा था कि देखिए मैंने थानवी का कलमा नहीं पढ़ा है। हुँ, ये सब उसने बात करने लगा। हुँ, तो मैंने कहा, तो मैंने वो हदीस भी मैंने उसको सुनाई, हवाला तो नहीं दे पाया, वो माँगा भी नहीं था कि आपने वो हदीस बाज़ार आपने सुनी होगी। हुँ, कि याद करो मैदान महशर का जब वो मामला होगा, खुलासा ये है कि जब मैदान महशर का मामला होगा, तो हम उसको उसी के पेशवा के साथ बुलाएँगे, और आप पेशवा किनको मान रहे हैं? थानवी को मान रहे हैं, हुँ, गंगोही को मान रहे हैं, कांडेलवी को मान रहे हैं। हुँ। हाँ, अब आप खुद ही समझ सकते हैं। जी, तो बिल्कुल सही बहरहाल कहा। जी, जी, जी। तो मैं नंबर ले लिया हूँ, हुँ, मुफ्ती का भी तो नहीं लिया हूँ, मुफ्ती का भी लूँगा या उसके सामने ही मैं जाऊँगा। ठीक है, इंशाअल्लाह। जी, जी। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं बात करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जी, हज़रत अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।